Hi students, welcome back to my YouTube channel and crash course of class 12th. Today we will start a new chapter alcohol, phenols and ether और ये हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स के बाद का नेक्स्ट चैप्टर है. थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड हो जाएंगी. तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो प्लीज़ हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स का जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो रिएक्शंस थे, उनको याद रखेगा, स्पेशली ग्रिग्नार्ड रिएक्शन. और मैं लास्ट ईयर क्वेश्चंस जो फोकस करूंगी वो आईएससी बोर्ड पर ही फोकस करूंगी. सीबीएसई वालों को भी मैं करवा देती हूँ सॉल्यूशंस. आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल जस्ट ऐड इट इन माय वीडियोस. सो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. ओके, the preparation of alcohol. Here alcohol is the OH group and R denotes here as the alkane group. Okay, so first of all we have to prepare alcohol from the alkene, and wherein the first method is to prepare it from acid catalyst hydration. So let's take an example of alkene. Here CH2, CH, CH3. What we have to do is hydration. Hydration means addition of water. I'll write here water as HOH in the presence of acid. So taking H plus ion, and now here I'll apply Markovnikov rule. Right? Markovnikov rule states that hydrogen will go to the carbon atom having more number of hydrogen. So यहाँ पे hydrogen जाएगा, OH group यहाँ पर जाएगा. So it will become like CH3, CH, OH, and this will become CH3, right? So please note that here the alcohol formed is a 2-degree alcohol. It is written as propane 2-ol, right? Now talking about hydroboration oxidation, please इसको अच्छे से देखिएगा. Here again taking an example of propene, what we'll do, I'll add diborane here. Diborane is known as B2H6. Can I write it as BH3 whole twice? Okay, so BH3 whole twice. Now what will happen, hydrogen will go to both the carbon having double bond. Okay, so one hydrogen will go on this carbon, the other hydrogen will go on this carbon. Now I'll explain you how to balance it. Okay, first let me write. So it will become CH3, CH2, single bond, CH3. Okay, this is the addition of hydrogen in the first step. So here we have how many hydrogens? We have 6 hydrogens. Okay, now one molecule of propene consumes 2 hydrogen and we have total 6 hydrogen. So अगर मैं यहाँ पर 3 लगा दूँ, एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन कंज्यूम करता है तो 3 मॉलिक्यूल 6 हाइड्रोजन आइटम कंज्यूम कर लेगा. सो हेयर आई हैव बैलेंस्ड इट. ठीक है, होल थ्राइस B. सो दिस स्टेप इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन. Okay, now this is trialkyl borane, and now in the next step I'll do the oxidation using H2O2 in the presence of sodium hydroxide. So once I'll add an OH negative ion, what will happen? CH3, CH2, CH2, OH. Alcoholic group will be formed. Alcohol will be formed. Okay, leaving BOH whole thrice. Now one start point noted here is that if I want to make a 2-degree alcohol, then I'll simply follow the acid catalyst hydration. Okay, in the presence, like following the Markovnikov rule. But in case, so अगर मुझे 1 degree alcohol चाहिए, then I'll follow this process, hydroboration oxidation. This just acts like anti-Markovnikov rule. But अगर मुझे Markovnikov rule follow करना है और मुझे 2 degree पे alcohol चाहिए, so I'll go with the acid catalyst hydration. इसी पे बेस मैंने 2 questions लिखे हैं. Conversions. How will I convert propene to propane 1-ol? 1 पे alcohol लगाना है, so I'll follow hydroboration oxidation. If I want to prepare propane 2-ol, then in this case I need to follow the Markovnikov rule by simply using acid catalyst hydration. Okay, so now let's quickly start with the concept of carbonyl compound and the reducing agents. So students, before we use carbonyl compound in the preparation of alcohol, I would like to explain you the concept of it. Carbonyl compound basically वो compounds होते हैं जिनमें कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O होता है. Now there are 2 types of functional groups using this C double bond O thing. One is aldehyde. aldehyde में क्या होता है, C double bond O तो होता है बट एक में हाइड्रोजन होना चाहिए और एक में अल्काइल ग्रुप. ठीक है, दिस इज एल्डिहाइड. कीटोन में क्या होता है, ये जो C डबल बॉन्ड O होता है उसके लेफ्ट में भी कार्बन होता है, लेफ्ट राइट दोनों जगह कार्बन होता है, राइट. सो कार्बोनिल कंपाउंड का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, विच इन्वॉल्व्स C डबल बॉन्ड O, राइट. नाउ देयर आर सम रिड्यूसिंग एजेंट्स. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, ये
होता है एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, ठीक है, और ये हो गया अल्कोहल, ठीक है। अब क्या होता है, इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ दिस, देन हियर कार्बन के 3 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व है, यहाँ पर कार्बन के सिर्फ 2 ही बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व है, और यहाँ पर कार्बन का सिर्फ एक ही बॉन्ड है जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व है, राइट। सो ये काइंड ऑफ रिड्यूसिंग प्रोसेस में जा रहा है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इसमें है, फिर उससे कम और फिर उससे कम। आई नो यहाँ पे भी एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। सो अगर मैं रिड्यूस करूँ, इसको रिड्यूस करूँ तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है, और इसको अगर मैं रिड्यूस करूँ, ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, इसको अगर मैं रिड्यूस करूँ तो मुझे अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके कार्बोनिल, चाहे तो एल्डिहाइड चाहे तो कीटोन, और उसको रिड्यूस करके हमें अल्कोहल मिलेगा। यही अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगी तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके मुझे कार्बोनिल मिलेगा, कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन करके मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अभी हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करती हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करती हूँ तो मुझे अल्कोहल बनेगा, विच इज यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अब हम देखते हैं कि अगर मैं एल्डिहाइड को रिड्यूस करूं तब क्या प्रोडक्ट आएगा, और कीटोन को रिड्यूस करूं तब क्या प्रोडक्ट आएगा। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, LiLH4 एंड NaBH4। अब क्या होता है, इन दोनों में से आप कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं। जब मैं इसको रिड्यूस करूंगी तो ये अल्कोहल बनेगा, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो इस वाले ग्रुप जो है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस पे जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, उसका O के साथ ये एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, राइट, और एक हाइड्रोजन तो था ही, और एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा, उसको बैलेंस भी तो करना है। तो मैं शॉर्ट में क्या लिख सकती हूँ, CH2OH, ठीक है। सो आप याद रखिएगा कि अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ों का ध्यान रखना है, 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हम एल्डिहाइड का यूज़ करते हैं, बट यही अगर मैं LiAlH4 या फिर NaBH4 से कीटोन को रिड्यूस करती हूँ तब यहाँ पर OH ग्रुप आएगा। सो इट विल बी CH3COH CH3, ठीक है। ये कितना डिग्री कार्बन हो गया, 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, राइट। सो याद रखिएगा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल तो कीटोन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रिपरेशन, दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सेम ही है जैसे भी हमने इससे पहले पढ़ा था। अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं, लेट्स से इफ आई टेक वन एग्जांपल ऑफ एल्डिहाइड, इसमें आपको सिर्फ हाइड्रोजनेशन कराना है H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो सीधा हाइड्रोजनेशन ऐड हो रहा है, वही है, चाहे आप रिड्यूसिंग एजेंट से भी आप हाइड्रोजनेशन कराते हो और यहाँ पे डायरेक्ट भी आप करवा सकते हो। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर एक H था ही और एक H आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है। कीटोन में भी आप सेम ऐसे ही कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। 1 डिग्री अल्कोहल के लिए आपको एल्डिहाइड लेना पड़ेगा, अगर आपको 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कीटोन, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो चाहे आप रिड्यूसिंग एजेंट्स LiAlH4 NaBH4 से रिएक्शन करवाओ, चाहे आप डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, आंसर सेम आने वाला है। नाउ नेक्स्ट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं एक आपको इसका फॉर्मूला टाइप मैंने बनाया है, इसको आप देख लीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्टिंग विद एल्डिहाइड और कीटोन इट गिव्स एन एडक्ट व्हिच ऑन रिएक्टिंग विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव्स अल्कोहल। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr। इसकी प्रिपरेशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें लेट्स से मैंने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड जहाँ पर कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो। अब जब मैंने इसके साथ रिएक्शन कराऊंगी मैं, तब क्या होगा, सी हियर ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव will have a slight negative charge, here carbon will have a slight positive charge. In the same way magnesium being electropositive will have a slight positive, और मिथाइल के पास मतलब CH3 के पास स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा। अब क्या होगा, MgBr अटैक करेगा नेगेटिव वाले पे और ये नेगेटिव वाला अटैक करेगा पॉजिटिव वाले पे, ये पॉजिटिव कार्बन पे। तो इससे क्या होगा, CH3C, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड होगी बजाय सिंगल बॉन्ड O, और O के पास जाएगा MgBr, ठीक है, ये हाइड्रोजन एज इट इज, और इस वाले कार्बन पे जाएगा CH3, ठीक है। नाउ इफ आई ट्रीट इट विद वाटर, वाटर को मैं HOH लिख सकती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। सो अब क्या होगा, हाइड्रोजन विल अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन CH3CH, और इस CH3 को मैं नॉर्मली ऐसे ही लिख देती हूँ, राइट, एक ही बात है। और ऊपर जो था O के साथ कौन चला गया, O के साथ गया हाइड्रोजन, और बचा क्या, MgBr के साथ क्या गया,
OH, ये बचा हुआ OH जाएगा MgBr के साथ। सो MgOH Br या MgBrOH, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने कितना जो एल्डिहाइड लिया था उसमें कितने कार्बन थे, उसमें 2 कार्बन थे, लेकिन जो हमने प्रोडक्ट बनाया इसमें हमारे कितने कार्बन बन गए, 3 कार्बन, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है ये आप कितने भी कार्बन बना सकते हो इसमें, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज्ड, ठीक है। क्या हो रहा है ना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जाके इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 कार्बन ले लेती ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, भी मैंने CH3 लिया, अगर मैं C2H6 ले लेती तो यहाँ पर C2H6 जाके जुड़ जाता, तो 2 कार्बन यहाँ से जुड़ते, 2 यहाँ पहले से थे, तो 4 कार्बन हो जाते। सो याद रखिएगा, अगर आपको एडिशन करना है कार्बन का, एल्कोहल तो बनाना है एल्डिहाइड या कीटोन से, आपको एल्कोहल बनाना है, बट आपको कार्बन नंबर भी अगर इंक्रीज करना है, उस केस में आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, क्योंकि उसके साथ में मिथाइल ग्रुप फ्री में मिलता है, सॉरी एल्काइल ग्रुप फ्री में मिलता है, चाहे आपको जितने एल्काइल ग्रुप ऐड करना है उतना आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक चीज और है, ये जो एल्डिहाइड है, ठीक है, इस एल्डिहाइड से मेरे को कौन सा वाला डिग्री का एल्कोहल मिला, 2 डिग्री एल्कोहल मिला। अभी तक एल्डिहाइड से मेरे को 1 डिग्री एल्कोहल मिल रहा था, ये पहला केस ऐसा हुआ कि मुझे एल्डिहाइड से 2 डिग्री एल्कोहल मिला, क्योंकि इसमें मैंने कार्बन नंबर बढ़ा दिया। अब मैं एक कीटोन का एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे फटाफट से आपको बताती हूँ कि अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे मैंने CH3MgBr ही लिया है, और इस केस में अगर मैं कीटोन लेती हूँ, सो कीटोन के लेफ्ट में भी कार्बन होना चाहिए और राइट के भी, मतलब उस कार्बन में, ठीक है। इस केस में क्या होगा, क्या अगेन, सो कार्बन थोड़ा सा स्लाइड पॉजिटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव विल हैव स्लाइड नेगेटिव, यहाँ पे मैग्नीशियम स्लाइड पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव। सो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे अटैक करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, बस CH3 सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। और ये वाला CH3 एज इट इज, मैं ये कीटोन बना रही हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस वाले कार्बन पे इस वाले कार्बन ने अटैक किया, सो यहाँ पर नीचे एक CH3 और आ गया, ऊपर वाले पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा O, और O पे किसने अटैक किया, MgBr ने, ठीक है। ये बन गया आपका एडक्ट, ठीक है। अब इस एडक्ट के बाद क्या होता है, इस एडक्ट के बाद होगा आपका HOH रिएक्ट करेगा वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। सो HOH में क्या होता है, ये CH3 विल रिमेन एज इट इज, ऊपर जो O है उस पर चला जाएगा हाइड्रोजन, OH बन जाएगा, और MgBrOH आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, इफ आई टॉक अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्टिंग विद एल्डिहाइड गिव्स 2 डिग्री एल्कोहल, एंड अगर इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैं कीटोन के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो ये 3 डिग्री एल्कोहल आपको देता है, ठीक है। और इसमें कार्बन नंबर भी ऐड हो जाता है, तभी तो ये 1-1 डिग्री बढ़ रहा है, ठीक है।